ہر قسم کی تمام تعریفات توصیفات اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، خواتین اسلام، نوجوان دوستوں، عزیز بھائیوں، بچوں اور بچیوں، آج میں آپ کے سامنے اس گروہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو گروہ ہم مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کفار، RSS، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ گروہ ہے منافقوں کا گروہ۔ میرے دوست اور بھائیوں، منافق یہ مسلمانوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں، ہم انہیں پہچان نہیں پاتے کہ یہ کون ہے، لیکن انہی منافقوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی مصیبت، طرح طرح کے آزمائشوں سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا۔ آپ تاریخ اٹھاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یا ان کے بعد سے آپ کو پتا چلے گا جتنا نقصان مسلمانوں کو، اسلام کو کفار سے نہیں پہنچا، یہود و نصارہ سے نہیں پہنچا، جتنا ان منافقین کے ذریعے سے پہنچا۔ آئیے تھوڑا سا میں بتا دوں، ان کا بیان کروں اس گروہ کے سلسلے میں جو آج بھی ہم مسلمان درمیان پائے جاتے ہیں، تب کہ ہم کو پتا نہیں لگتا کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کے حرکات کی وجہ سے، ان کے عادات کی وجہ سے، ان کے عادات اور ان کی سازشوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں نفاق اور منافق کی جو نشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح کرنے کی کوشش کروں گا، کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ منافق جو ہوتے ہیں کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے درمیان میں ان کے اندر ایسے صفات پائے جاتے ہیں کہ ان کے اندر منافقوں کی صفات ہوں گے، اور ان کی سازشیں ہم مسلمانوں کے لیے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر طرح طرح کی مصیبتیں آ پہنچتے ہیں ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ اب اس کے کہ میں نفاق اور میں منافقوں کے بارے میں کچھ ذکر کروں، اس سے پہلے بتا دوں کہ منافق کسے کہا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، دیکھیے نفاق یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یہ نافق، ینافق، منافقتن یا نافقن سے یہ مشتق ہے، اس کا یہ ملا ہوا ہے یعنی نافق سے، جس کا منافق اس سے بنتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لغوی طور پر کہ حقیقت پر پردہ ڈالنا، دو منہ والا ہونا یا دو واضح حقیقت کچھ اور جھوٹ یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور دوسرے کو ظاہر کرنا۔ اور منافق کی نشانی ہوتی، منافق کی علامت بھی ہے کہ منافق جو اس کی حقیقت ہوتی ہے، جو دل میں کفر کو چھپائی ہوئی ہے، اس کو چھپاتا ہے، اور ایمان نہیں ہوتا ہے جب اس کے اندر تو ایمان کو کیا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو لغوی معنی۔ ایک اور بات، ایک نافقہ یہ اردو ایک جنگلی چوہے کے بارے میں آتا ہے۔ جنگلی چوہا کیا کرتا ہے معلوم ہے، وہ دو دل بناتا ہے، دو سوراخ بناتا ہے، اور ایک سوراخ پتہ نہیں ہوتا ہے، جس سوراخ سے اس کو نکلنا ہوتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، اور ایک جب خطرے کے وقت پر جب خطرہ اس پر آ جائے تو دوسرے سوراخ سے نکلے گا، اگر پہلے سوراخ سے کوئی خطرہ آ جائے تو دوسرے سوراخ سے نکل جائے گا، اور وہ دوسرا سوراخ چھپا ہوا رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا وہ بھی جہاں سے خطرے سے نکلنا ہے وہ سوراخ وہ چھپایا ہوا ہے، اور جو آنا جانا ہے جہاں سے خطرہ آ سکتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، وہ دوسروں کے سامنے، جیسے اس سوراخ کے اوپر خطرہ آ جائے گا وہ وہاں سے نکل جائے گا۔ میرے دوست بھائی، یہ تو لغوی تعریف۔ اصطلاحی تعریف، ایک انسان اپنے دل میں کفر کو چھپائے اور زبان سے ایمان کو ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرے کہ میں تو ایمان والا ہوں، لیکن دل کے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہے، دل کے اندر تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، دل کے اندر تو مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، دل کے اندر تو مسلمانوں پر جو مصیبت جو آفت آنے والی ہے اس پر خوش ہونا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی راحت، کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، کوئی کامیابی وہ کامران میں پہنچتی ہے تو اس پر ناراضگی کا، اس پر ناراض ہو جانا، اس کے اوپر غم منانا، یہ کس کا شیوا رہا؟ یہ رہا منافقوں کا شیوا۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 12 منافقوں کا ذکر کیا، بلکہ 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون یعنی منافق کے نام سے ایک مکمل سورت ہے۔ 28ویں پارے میں جو سورہ جمعہ کے بعد آتی ہے، جو کہ جمعہ کی نماز میں پڑھنا سنت بھی ہے، دو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، ٹھیک ہے، خیر۔
और ऐसे अल्लाह ने उसी से फरमा हुमुल आदुव्वु फहज़रहुम, यही तुम्हारे असली दुश्मन है, तुम इनसे परहेज करो, यानी अपने दिल की बात इनसे ना करो, इनसे इतनी दोस्ती ना करो, कहीं इन मुनाफिकों की वजह से तुम्हें तकलीफ का सामना ना करना पड़े मेरे दोस्त और भाइयों। आइए थोड़ा सा मैं आपके सामने बयान कर दूं कि मुनाफिक निफाक की कितने किस्में हैं। देखिए निफाक की दो किस्में हैं, एक है एतकादी निफाक, एतकाद अकीदे के ताल्लुक से है। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह एक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, आखिरी रसूल है, हम सब आप पर ईमान लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत बरहक है और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आंख बंद करके बगैर चूं चरा के उसको तस्लीम करने वाले हैं, और आपकी शरीयत के मामले में आपकी शरीयत के मुकाबले में किसी और की बात आ जाए तो हम उस बात को कबूल नहीं करेंगे, जहां नबी का फरमान आ जाए वहां हम आपकी बात को लेंगे। लेकिन ये क्या है? अब एतकाद निफाक क्या है? एतकाद निफाक ये है कि दिल के अंदर कुफ्र को छुपाना है, जुबान से ईमान को जाहिर करना है, दिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु से नफरत करना है और जुबान से इजहार करना है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्त और भाइयों देखिए मतलब ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाना, आपकी लाई शरीयत का इनकार करना या उसका झुठलाना, या आपकी एक भी हुक्म का शरीयत का आज लोग करते हैं, झुठलाते हैं, वरासत का मामला आता है, बहन को देना है तो वहां पर क्या करते हैं? हम इसको नहीं मानेंगे, हम जाएंगे कोर्ट में, हम गए कचरे में, बहन का हिस्सा कैसे होता? अरे वो तो दहेज में दिया गया, अरे दहेज की शादी की गई, जो कि हिंदुआना रस्म, जो कि राजपुता रस्म, जो कि काफिराना रस्म, तो आज लोगों ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया, और जो हिस्सा जो अल्लाह ने बताया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस हिस्से, उस मामले को, उस हुक्म को भुला दिया, इनकार करके लोग कहा जाते हैं कोर्ट कचहरी जाते हैं। गोया ये भी क्या है? आप सल्लम के लाई हुई, आप सल्लम की लाई हुई शरीयत के किसी भी हिस्से का इनकार करना या उसे बुरा समझना, ये क्या है? एतकाद निफाक मुकम्मल तौर पर क्या है? आदमी मुनाफिक हो जाता है। नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी रखना, या आपके शरीयत के बाद किसी हिस्से से, कोई भी हिस्से से, कोई भी हुक्म से, कोई भी ममनुआत से, मना करदा चीज से क्या करना? उससे भी नफरत करना, ये भी क्या करता है? इंसान को मुकम्मल मुनाफिक बना देता है। नंबर 3, उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल पर खुश होना। आज कहते हैं अच्छा हो गया, मुसलमानों को ये हो रहा ना, बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों को ऐसे ही होना चाहिए, और ये खुश हो जाना, और ये क्या चीज है मेरे दोस्त और भाइयों? ये भी मुनाफिक की निशानी है मेरे दोस्तों। जब दीन इस्लाम की दीगर अदियान पर गलबा हासिल होता है तो ये मुनाफिक में चिढ़ आ जाती है। ये तो दूसरी किस्म है अमली निफाक। अमली निफाक से मुराद ये है कि इंसान तो उससे उतना बड़ा मुनाफिक नहीं बनेगा। मसलन मुनाफिकों की आदत आना, जैसे झूठ बोलना, बात बात पे वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, इस तरीके से लोगों को धोखा देना, गाली गलौज करना, ये मुनाफिकों की अलामत में से मेरे दोस्त भाइयों। निफाक अकबर किसे कहते हैं? यानी बिल निफाक, जो मैंने एक निफाक वाले को, और निफाक असगर जिसके अंदर मुनाफिक की निशानियां होते हैं, यानी झूठ बोलना, धोखा देना, गाली गलौज करना, वादा खिलाफी करना, गद्दारी करना। समझ में आया ये दो बातें? अब थोड़ा सा हम जानते हैं निफाक अकबर और निफाक असगर के दरमियान क्या फर्क है। देखिए निफाक अकबर में फर्क ये है कि निफाक अकबर से एक इंसान मुकम्मल दार इस्लाम से बाहर हो जाता है, लेकिन निफाक असगर से ऐसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, निफाक अकबर एक सच्चे मोमिन से शादी कभी नहीं हो सकता, याद रखिए, कभी भी नहीं हो सकता। अलबत्ता निफाक असगर कभी कभी एक मोमिन से शादी होने के इम्कान है। दूसरी बात ये हो गई। और नंबर 3, निफाक अकबर जिसके अंदर होगा वो अगर उससे मर जाए तो हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अगर जिसका अंदर निफाक असगर है तो हो सकता है वो अल्लाह की मशताबे, अल्लाह चाहे उसे गुनाह को माफ कर दे, या उसको इतनी सजा दे जहन्नम में जितना उसका गुनाह हुआ है, जितना उसके अंदर सिफत आई जो मुनाफिकी में झूठ बोलना, धोखा देना, उसके बाद दोबारा फिर अल्लाह ताला एक वक्त के बाद जहन्नम से निकाल कर उसे जन्नत में डाल देगा। मेरे दोस्त और भाइयों देखिए, निफाक जो है ना, हमारी खवातीन भी आई है, हमारे मोमिन, हमारे मुसलमान मर्द हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें हमारे भाई हैं, खवातीन हमारे औरतें हैं, हमारे नौजवान बच्चियां हैं, नौजवान बच्चे, उन सबको हम बता दें मैं आपको कि निफाक जो है इतनी खतरनाक बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी है कि सहाबा किराम निफाक से डरा करते थे।
बड़े बड़े सहाबा किराम उमर बिन खत्ताब और बड़े बड़े सहाबा किराम जो है ना निफाक से डरा करते थे मेरे दोस्त और भाइयों। और निफाक इतना बड़ा ये मर्ज इतना खतरनाक, इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो उस निफाक में मुब्तला होता है तो उस निफाक में बढ़ता चला जाता है। अल्लाह ताला उस मर्ज को उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कि अल्लाह ने कहा कि फी क़ुलूबिहिम मरदुन, कि इनके दिल में मर्ज है। किस चीज का? निफाक का मर्ज है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, और अल्लाह ने इनके इस मर्ज यानी निफाक को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, क्यों? इसलिए और अल्लाह ताला के इस पर इनके ऊपर दर्दनाक अज़ाब होगा। क्यों? क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोलते हैं? दिलों में ईमान तो नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं हम ईमान वाले हैं। अरे उनके दिलों में किफ्र है, और कुछ होने के बावजूद ये मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने, मुसलमानों से फायदा उठाने के लिए ये झूठा ईमान का दावा करते हैं, झूठा ईमान को जाहिर करते हैं मेरे दोस्त और भाइयों। यही वजह है कि सहाबा किराम निफाक से बहुत डरते थे। ये हमेशा इस डर में रहते थे कहीं हमारे अंदर से निफाक नहीं आया। आपको मालूम ताबीर इब्न अबी मलीका रहमतुल्लाह अलैह कहते ताबी हैं, वो कहते हैं कि अदरकतु सलासिन मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 30 सहाबा किराम से मैंने मुलाकात की। मैंने 30 सहाबा किराम को मैंने पाया और मैंने हर एक को कुल्लुहुम यखाफुन निफाक, मैंने उनमें से हर एक को निफाक से डरते हुए देखा। ये था मेरे दोस्त और भाइयों। और ये असर कहां पर? ये ताबी का जो कौल है ये सही बुखारी के अंदर ये कौल आया है मेरे दोस्त और भाइयों। यानी 30 सहाबा किराम, कौन सहाबा किराम? जिनसे अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि अल्लाह इनसे राजी हो गए और ये अल्लाह से राजी हो गए। हाँ, इनके बारे में कहा और ये सहाबा किराम निफाक से डरते थे। और हम किस कहते हैं? आज हमारे पास कोई ताकत नहीं जो सहाबा किराम के पास थी। अरे हमें इन्हें ईमान ऐसे लाना जैसे सहाबा किराम ईमान लाया। आज हमारे में कितनी फिक्र है हमारे, अगर मैं कहूं तो आज के आज खुद जुमा इंशाअल्लाह बहुत सारे मुनाफिकों की सिफात मैं जिक्र करूंगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारे अंदर भी क्या वो मुनाफिकों की सिफात नहीं है। तो जरूर वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे अंदर भी मुनाफिकों की सिफात आए हैं मेरे दोस्त और भाइयों। देखिए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ैफा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, क्योंकि उनके पास मुनाफिकों की लिस्ट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ये फला फला आदमी मुनाफिक है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मुझे बताओ सही, मेरा नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों में तो शुमार नहीं किया। उमर बिन खत्ताब जिस रास्ते से उमर बिन खत्ताब गुजरते थे वो रास्ते शैतान नहीं आता था, शैतान भाग जाता था। और वो उमर बिन खत्ताब जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुआ में मांगा कि अल्लाह ताला तुम्हें ईमान की दौलत से नवाज दे, तो उन्हें मुसलमान बना, इसलिए कि मुसलमानों को कुव्वत मिलेगी, मुसलमानों के पास ताकत आएगी मेरे दोस्त और भाइयों। और यहाँ नहीं बल्कि मैं आपको बता दो ये उमर बिन खत्ताब वो है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मेरे बाप कोई नबी होते तो उमर बिन खत्ताब होते रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो उमर रज़ियल्लाहु तआला क्या कह रहे हैं? अरे जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई, अरे उमर बिन खत्ताब जो अशर मुबश्शिरा में है, जो 10 जन्नत की जिन्हें खुशखबरी दी गई उनमें से है, जो दुनिया में जिन्हें खुशखबरी दी गई वो कहते हैं कि कुछ मेरे बताओ। उस दफे में कहते हैं कहीं मेरा शुमार तो मुनाफिक में नहीं। वो उमर बिन खत्ताब जिन्होंने दूसरे खलीफा बने तो उनका ऐसा डर था, तो हम कहां गए मेरे दोस्त और भाइयों? आज तो हम खुले इसमें जी रहे हैं, कोई डर नहीं दिल में, कोई खौफ नहीं। कितनी अफसोस की बात है मेरे दोस्त और भाइयों। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकों का पर्दाफाश किया था, किस तरीके से किया था। और ऐसे ही मेरे दोस्त और भाइयों उनके जो भेदों का अल्लाह ने पुष्ट अज़बाम किया। और कुरान करीम में अल्लाह उसका नक्शा यूं खींचा है। अल्लाह ने कहा क्या कहा? देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने कहा मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और लोगों में से बाज़ लोग ऐसे जो ये कहते हैं, जुबान से तो दावा करते हैं, क्या कहते हैं? हमने ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिर पर, हालांकि मोमिन नहीं है। अल्लाह कहता है युखादिऊनल्लाह युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, और इन्हें समझते हैं, मुनाफिक ये समझते हैं कि हमने अल्लाह को धोखा दिया और मोमिनों को, मुसलमानों को, ईमान वालों को हम धोखा दे रहे हैं। अल्लाह कहता है वा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, अरे ये मुनाफिक अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, ना ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है और अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे को वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही करके बतला देगा कि ये मुनाफिक है, तुम इससे बाज रहो। और ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दिया, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन ये ना समझे, इसका शूर नहीं रखते, बल्कि ये अपने आप को धोखा दे रहे। कुरान करीम में इस तरीके से अल्लाह ताला ने जिक्र किया मेरे दोस्त और भाइयों। चलिए आगे चलते हैं हम।
अगर हम तारीख इस्लाम का मुताला करें तो देखेंगे सहाबा किराम पर इन मुनाफिकों की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची। आप उठाइए गज़वे खंदक के अंदर भी आपको बात मिलेगी। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इल्जाम लगाया गज़वे में बनी मुस्तलिक से जब वापस हो रहे थे। ऐसे बेशुमार मिसालें हैं मेरे दोस्त और भाइयों। आइए मैं थोड़ा सा अब आगे चलते हुए, तो मैं उसकी वजाहत कर दिया मुनाफिक की निशानियां, मुनाफिक की वो कौन कौन सिफात है जो कुरान में बाकायदा कुरान के अंदर बताया गया। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में इसका जिक्र किया। सबसे बड़ी उनकी सबसे पहली जो सिफात में से एक सिफत है, निशानी है, वो है झूठ बोलना। मेरे दोस्त और भाइयों, झूठ बोलना ये मुनाफिकों की बहुत बड़ी निशानी है कि ये हमेशा झूठ बोलते हैं और उनके यहां सच बहुत ही कम आता है। हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ होने की शहादत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दी है। क्या दी? देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मुनाफिकून के शुरू में, सूरह मुनाफिकून जो है ना कुरान करीम, अल्लाह कहता है इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ये मुनाफिक है नबी आपके पास आकर कहते हैं कि मुनाफिक ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि हम अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह कहता है वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलुहु, कि अल्लाह तो जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही देता है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, और अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह कहता है, अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं, जो ये बात कह रहे हैं झूठे हैं। ये आसमान से अर्श से अल्लाह ताला ने ये वही नाज़िल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खैर, तो मुनाफिक जो थे ना इस तरीके से क्या करते थे। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया एक जगह कुरान करीम में सूरह मुजादिला के अंदर कि वमा यबअसुल्लाहु जमीअन फयहलिफु लहुम कमा यहलिफुन लकुम व यहसबुन अन्नहुम अला शै, कि मुनाफिकों को जब अल्लाह ताला इकट्ठा जिस दिन उठाएगा ना, उस दिन ये अल्लाह ताला के सामने भी कसमें खाएंगे जिस तरीके से ये कसमें आपके सामने यानी ईमान वालों के सामने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाया करते थे। वह यहसबुन वला शै, और उनका कुछ भी नहीं होगा। ये कितने में कसमें खाएंगे, क्या भी करेंगे, आज उनके बात पर यकीन नहीं होगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। मेरे दोस्त और भाइयों, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तरह तरह के जिक्र इनका किया है। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, मक्र व फरेब करना, धोखा देना। मक्र कौन करता है? शैतान के अंदर भी चीज है, मुनाफिकों के अंदर भी है। धोखा देना ये मोमिन की अलामत नहीं है, मुसलमान की निशानी नहीं है। धोखा देना, मक्र व फरेब करना। मक्र कैसी चीज होती है? आज मर्दों में भी, हम मुसलमान मर्दों में भी मक्र आ चुका है, फरेब आ चुका है। खवातीन एक घर में रहते हैं तो जो होते मक्र कैसे करना, किस तरीके से धोखा देना, ये खवातीन में भी आ चुका, मर्दों में भी आ चुका, हमारे मर्दों में आ चुका है। मेरे दोस्तों और मेरी माँ और बहनों में बता दो, मक्र और फरेब, धोखा देना अपनी मीठी मीठी बातों के जरिए या अपने चालबाजी के जरिए परेशान करना किसी को, ये किसकी अलामत है? ये है मुनाफिकों की अलामत है। ये निफाक की निशानियां है मेरे दोस्त और भाइयों। देखिए मुनाफिकों की ये निशानी इतनी खतरनाक है, वो धोखाबाजी करते हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया? युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग अल्लाह को धोखा दे रहे। मुनाफिक देखिए कैसे थे। मदीने में जो मुनाफिक थे मुसलमानों के दरमियान रहते थे, मुसलमानों के साथ मिलकर रहते थे, मुसलमानों के साथ चलना फिरना था, और क्या समझते थे? मुसलमानों की बातें लेते और मुसलमानों की बातें लेकर अपने सरदार, अपने जो सरदार यानी कुफ्फार जो थे उन तक पहुंचाते, ताकि मुसलमानों की जो खबरें हैं वो उन तक पहुंचाया जाए। और ये समझते थे, क्या समझते? अब ये धोखाधड़ी हो गया, मकर फरेब हो गया ना, यानी मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहना, उनसे मीठी मीठी बातें करना, उनके साथ मिलकर रहना और उनकी बातें लेना, उनके राजों को लेकर इन कुफ्फार के पास पहुंचाते थे। तो क्या कहते और क्या समझते हैं? अल्लाह ने जो कहा कि मुनाफिक ये समझते हैं कि हमने अल्लाह को धोखा दिया और मोमिनों को धोखा दिया। वमा यहदिल्लाहु अनफुसहुम, अल्लाह को ना मोमिनों को धोखा दे सकते बल्कि अपने आप को धोखा रहे। वमा यशउरून, लेकिन ये समझने वाले नहीं है मेरे दोस्त और भाइयों। ये एक बात हो गई। और अल्लाह ने क्या कहा? फज़ाद फी क़ुलूबिहिम मरज़ फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिल में जो मर्ज़, निफाक की जो बीमारी थी, निफाक का जो मर्ज़ था, अल्लाह ने इनके मर्ज़ को और बढ़ा दिया और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। और क्यों? क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। क्यों? ये झूठ बातों को झुठलाते हैं, ये ईमान को जाहिर करते हैं और किसी को अपने दिलों में छुपाते हैं। मेरे दोस्त ने इसका जिक्र किया। नंबर 3, बज़ाम इस्लाह, यानी इस्लाह की उनकी दावत इस्लाह करते हैं, इस्लाह की सोच उनकी है, दावा है झूठा, लेकिन बज़ाम इस्लाह वो जमीन में फसाद फैलाते हैं।
जमीन के अंदर क्या करने वाले, फसाद फैलाते। मेरे दोस्त और भाइयों, मुनाफिकों की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि माशरे में इस्लाह का दावा करते हैं, कहते हैं अरे हम तो क्या कर रहे हैं, लोगों के दरमियान इस्लाह कर रहे हैं, जमीन में इस्लाह कर रहे हैं, हालांकि वो इस्लाह नहीं कर रहे हैं बल्कि फसाद बर्पा कर रहे हैं। अल्लाह ने कह दिया उनसे, अल्लाह की कुरान करीम की आयत, अल्लाह ने कहा वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि अल्लाह ताला कहता है कुरान करीम में, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत करो, फसाद मत बर्पा करो, वो कहते हैं कि क़ालू हम ऐसे नहीं है, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, अरे हम तो जमीन में इस्लाह करने वाले हैं, फसाद फैलाने वाले नहीं हैं। अल्लाह कहता है सुन लो, अल्लाह कहता है मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून, अल्लाह कहता है यही वो लोग हैं जो जमीन के अंदर इस्लाह नहीं बल्कि फसाद बर्पा करने वाले हैं, लेकिन वे समझते नहीं है। कुरान करीम में ऐसा कहा गया है मेरे दोस्त और भाइयों। लिहाजा अफसोस की बात यह है कि आज के माशरे में भी आज हम देख रहे हैं जाली पीर हैं जो मुसलमानों के दरमियान, जो दुनिया के अंदर के आगे फसाद फैला रहे हैं। जाली पीर ऐसे क्या क्या है, मांगने वाले, फकीर, मुर्शद और काहिन, आमिल क्या कर रहे हैं, जमीन में फसाद फैला रहे हैं। अब देखते हैं इनकी वजह से लोग जाते हैं इनके पास, औरतों के पास जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, इनकी वजह से ये ऐसे बड़े बड़े मुनाफिक जिनके पास कुरान का इल्म नहीं, जिनके पास हदीस का इल्म नहीं है, और इनकी वजह जमीन में कितना बड़ा फसाद बरपा, ना जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए, ना जाने कितने औरतों की इज्जत इन्होंने लूटा, कितने लोगों को इन्होंने पैसा लेकर भाग गए, कितने लोगों के घरों को इन्होंने उजाड़ दिया। आपको पता है कैसे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज आप देखते हैं मीडिया में कितने सारे खबरें आते हैं, कहीं बलात्कार के, कहीं रेप के, कहीं मर्डर के, किसी के साथ उन्होंने किसी को बहू बेटी को लेकर भागा, किसी के साथ उन्होंने बुराई की, बेहयाई के कामों का अंजाम दिया, बलात्कारी की, ना जाने किसी की तरफ पैसा लूटा। उसके बावजूद भी मुसलमानों के अंदर इतनी समझ नहीं आती कि उन्होंने अल्लाह का डर छोड़कर इन मुनाफिक, इन जाली पीरों के पीछे पड़ गए और अपने दिन को खराब किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो कोई शख्स मना तारासन फसाअन शयन तुक़बल सलात और मैंने लैला, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई आदमी किसी काहिन के पास, किसी मुजीरी के पास जाता है, सिर्फ सवाल पूछता है किसी ताल्लुक से, यकीन नहीं करे सिर्फ सवाल पूछता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे आदमी की 40 रातों की नमाज कबूल नहीं। सिर्फ सवाल पूछा काहिन के पास जाकर, और नबी के वसल्लम एक जगह और हदीस में फरमाते हैं सिर्फ सवाल पूछना है, और अगर कोई उनकी बात पर जो बात बता के मुझे और उनकी बात पर कोई तस्दीक करता है, तो नबी के वसल्लम फरमाते हैं मना ताराफन औ काहिन फसद्दक़ू बिमा यक़ूलु बिमा उनज़िला अला मुहम्मद फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स उनके पास जाता है, किसी काहिन के पास, किसी अल्लाह के पास जाता है और उसने जो बात कही है उस बात की तस्दीक करता है, यकीन करता है जो मुझे में कह रहा है, तो गोया उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाज़िल हुई है उस शरीयत का इनकार करने वाला है। और रिवायत सहीह जामे सगीर की रिवायत है मेरे दोस्त भाइयों। आज हम मुसलमानों में देख रहे हैं लोग जब जुम्मे के पास जुम्मे ने जो बात कहा, डंक की चोट पर उस बात को मान रहे हैं, जो बात कही, हालांकि अल्लाह ने जो बात कही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हमको दिया, उस पैगाम को हम माने तैयार नहीं है, तो फिर मुसलमान जरूर रुसवा होने वाले हैं। ये हो गई तीसरी निशानी। चौथी निशानी क्या है? सहाबा किराम को बुरा भला कहना। मुनाफिक की अलामत ये होती है कि वो सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं, सहाबा किराम का लुलुच करते। कौन सहाबा किराम? वो सहाबा किराम जिनके जरिए आज दीन इस्लाम हम तक सही पहुंचा, वो सहाबा किराम जिनके जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान, एक एक इरशाद महफूज रहा, आज हमारे सामने मौजूद है। आज हम जो कुरान की तालीम हासिल करते हैं, ये सहाबा किराम ने हम तक पहुंचाया। जो अहादीस हमारे पास आज मौजूद है, यही सहाबा किराम के जरिए है। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं, सहाबा किराम की शान गुस्ताखी करते हैं, सहाबा किराम के साथ सहाबा किराम को धोखेबाज कहते हैं, सहाबा किराम कहते हैं झूठा कहते हैं। अब उठाइए हमारे मसले की तासुब में हमारे मुसलमानों के अंदर एक कुछ ऐसे उलमाए सुन गुजरे जिनका नाम लेना मैं नहीं चाहूंगा, इसलिए कि उनका नाम लेना गोया मुंबर की तौहीन है, जिन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये कौन से सहाबी हैं, ये कौन जिनसे इतने सारे हदीस मरवी
4-5 हजार हदीस मरी हुई, ये हो नहीं सकता है, इन्होंने झूठ बात कही है, इन्होंने झूठी बात हदीसें पेश की है। मेरे दोस्त और भाई, इस तरह ऐसे बातें कही गई और आज हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। याद रखिए, सहाबा किराम को उस वक्त मुनाफिकों में बुरा भला कहते थे, और आज भी हम कुछ मुसलमानों के अंदर और कुछ शिया के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु बुरा भला कहने वाले, यहाँ तक उनकी जुर्रत होती है वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीफ की जैसी सजा दूसरे खानों पर दी, उनके बारे में कहते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये जहन्नम में है, ये जहन्नम में जाने वाले हैं। बाकायदा एक दिन साल में मनाया जाता है जिस दिन केक के ऊपर बाकायदा केक के ऊपर लिखा जाता है आयशा फिन्नार, नौजुबिल्लाह, कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो तमाम मोमिनों माँ है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये जहन्नमी है, ये जहन्नम में जाने वाली है। मेरे दोस्त और भाइयों, और ये मुनाफिक की अलामत थी मेरे दोस्त और भाइयों, बेशक सहाबा कराम को बुरा भला कहना ये मुनाफिक की निशानी है मेरे दोस्त और भाइयों। नंबर 5, गद्दारी करना। आइए अब इसके बारे में आपको बता दो, गद्दारी करना और ये मुनाफियों कैसे थी। देखिए, जब ये मुनाफिक अल्लाह से ये आहद करते थे, आहद करने के बाद जब अल्लाह ताला इनके वादे को पूरा करता, अपनी तरफ से इन्हें नवाजता, उसके बाद ये लोग आहद को तोड़ देते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने इसका नक्शा यूं खींचा है कि मदीने में जो मुनाफिक थे वो क्या किया, देखिए, वमिनहुम मन आहद अल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न व लनकुनन मिनस सालिहीन। ये मुनाफिक ने क्या कहा, अगर अल्लाह ताला अपने फजल से हमें गनी कर देगा तो हम अल्लाह के राह में सदका करेंगे और नेकोकारों में हो जाएंगे, नेको साले बन जाएंगे। लइन आताना मिन फज़लिही, तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उन्हें अपने फजल करम से उन्हें माल दे दिया, नवाज दिया, उन्हें तरह तरह के उन पर अल्लाह ने इनाम किए। उसके बाद उन्होंने क्या, अल्लाह तवल्लौ, सदका को भूल गए और उन्होंने क्या किया, फिर गए। इन्हें जो बाद में जो वादा किया था कि हम ईमान लाने वाले हैं, हम नेक साले हो जाएंगे अगर अल्लाह हमें मालदार बना देता है, गनी कर देता है, तो अल्लाह ने कह दिया फ़अक़अहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यलक़ूनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदू बिमा कानू यकज़िबून, कि अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर उस वक्त तक निफाक को लिख दिया, निफाक को आम कर दिया जब तक अल्लाह से इनकी मुलाकात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अल्लाह के वादे की खिलाफ वर्जी की और अल्लाह के वादे को झुठलाया। जिन बातों के बारे में कहा था अगर अल्लाह हमें नवाज देगा तो हम ईमान वाले हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने नवाजा, ना इन्हें सदका किया, ना तो इन्हें ईमान लाया, ना इन्हें को सोने हो गए और इन वादे की खिलाफ वर्जी किया। अल्लाह कहता क़यामत के दिन हम इन्हें दर्दनाक अज़ाब देंगे। मेरे दोस्त भाई, आज देखिए हमारा भी मुसलमानों में यह हाल हुआ है। हम क्या कहते हैं, अगर हमें अल्लाह फला चीज देगा, हमें मालदार बनाएगा, हमारी मुश्किलों को दूर करेगा, हमारी परेशानी को दूर करेगा, तो हम क्या करेंगे, अल्लाह ताला पर सही ईमान लाएंगे, नेको साले में बन जाएंगे, अच्छा बनेंगे हम। लेकिन जैसे अल्लाह ताला हमें नवाजता है, हमारे रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, फिर हम अल्लाह को भुला देते हैं, सदका करना भूल जाते हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, ये मुनाफिकों की अलामत है। मेरे दोस्त और भाइयों, नंबर 6, कुफ्फार और यहूदियों से दोस्ताना ताल्लुक कायम करना। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें मना किया दीनी तौर पर, ठीक है, हमारे कारोबार है, कोई मसलियत अलग बात है, कोई मसलियत है, लेकिन दीनी तौर पर कुफ्फार को अपना दोस्त बनाना, यहूद और नसारा को अपना दोस्त बनाना, क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा, कुफ्फार जो है ये कभी मोमिनों के दोस्त नहीं हो सकते, काफिर जो है ये यहूद व नसारा है ये कभी मोमिनों के दोस्त नहीं हो सकते। अरे ये तो दुश्मन इस्लाम है, ये हमेशा इस डर पर रहते हैं कि मुसलमानों को कैसे बर्बाद किया जाए, इस्लाम को कैसे ज़ाद लाया जाए, और आज कामयाब भी हो रहे हैं। आज देखते फलस्तीन में यही यहूद व नसारा, यही यहूद मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रहे हैं। जब भी मौका मिलता है ये मुसलमानों को सतह से हटाना चाहते हैं। जब भी मौका मिलता है ये मुसलमानों की जो मुक़द्दस जगह है, जैसे काबा है, मस्जिद नबवी है, बैतुल मक़दिस है, इन्हें ढाने की हमेशा कोशिश करते हैं, तो कभी भी मुसलमानों को दोस्त नहीं हो सकते हैं। आज हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त और भाइयों, कहने में मुझे कोई लचक नहीं होगी, कोई झिझक नहीं होगी, जो ये कहते हैं, जो मुसलमानों में रहकर काफिरों का साथ दे रहे हैं, कहते हैं अरे हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, अरे काफिर बहुत अच्छे होते हैं, मुसलमानों से अच्छे हिंदू होते हैं। मेरे दोस्त और भाई याद रखिए, ये बात कहना सरासर गलत है और ये तो मुनाफिकों की अलामत है। क्यों?
क्योंकि काफिर जो होता है वो कोई मुसलमान से अच्छा नहीं होता, याद रखिए। जिसके दिल में ईमान है, ईमान वाला, वो काफिरों से बहुत बेहतर, हर एतबार से बेहतर होते हैं, चाहे ताकी के एतबार से हो, चाहे दिल एतबार से हो, चाहे अमली एतबार से हो। आज हम ये बात पे कहते हैं, ये बहुत गलत बात है मेरे दोस्त और भाइयों। आइए अल्लाह ने क्या कहा, देखिए, बशर मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, ए नबी इन मुनाफिकों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, इन्हें बता तुम्हारे दर्दनाक अजाब है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अल्लाह तखदू काफिरना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, इसलिए कि इन्होंने मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाया। आयत तगुना इन इज्जत फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, और ये लोग काफिरों के यहाँ इज्जत को ढूंढते हैं, जबकि तमाम इज्जतों का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे। काफिर को इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत कहाँ मिलेगी? अल्लाह ताला के पास मिलेगी मेरे दोस्त और भाइयों। ये एक बात हो गई। इस तरह इस नंबर 7, अल्लाह के कवानीन को नाफिज ना करना और खुद साख्ता कवानीन पर अमल करना। मेरे दोस्त और भाइयों, जब हम ईमान लाए, हमारे मर्द ईमान लाए, औरत ईमान लाए, ईमान लाने के बाद हम अल्लाह और उसके रसूल के ताबे हो गए। जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो कानून बनाए हैं, जो अल्लाह ने जो कानून बनाए हैं ना, उन कवानीन के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारना है, ना कि अपने खुद साख्ता। आज हम देखते हैं, कोई भी मामला हो, तलाक का मामला हो, खुला का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, इस तरीके से वरासत का मामला हो, या किसी का भी तरह का मामला हो, आज हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग अल्लाह के कानून पर कानून को नाफिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद साख्ता जो कवानीन बनाए गए उन कवानीन को नाफिज कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन मुनाफिकों के बारे में, ये मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने कहा, अलम तरो लल्लज़ीना ज़अमूना अन्नमा यनबिना उनसे इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू तागूत व क़द उमिरू अन यकफुरू बिही, कि अल्लाह ने कहा, ए नबी तुम उन लोगों को पाओगे जो लोग ये गुमान, उनका ये दावा होता है कि उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया, और आपसे पहले जो कुछ नाज़िल किया, आप पर जो नाज़िल किया गया उस पर ईमान लाया, लेकिन उसके बावजूद ये लोग चाहते हैं कि अपने जो फैसले हैं, अपने जो कवानीन, उन कवानीन की तरफ जाए जो तागूत यानी शैतान की तरफ है। शैतान के हिसाब से ये अपने कानून को नाफिज करेंगे, तागूत के पास अपने फैसले कर जाएंगे, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि तुम कुफ्र ना करो। अपने जो फैसले हैं, अब वो नबी के, जो अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के मुताबिक उन फैसलों को पूरा करो, लेकिन उसके बावजूद क्या करते हैं, वहां चले जाते हैं। और अल्लाह कहता है युरीदु शैतान अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान ये चाहता है कि शैतान उन्हें दूर की गुमराही में गिरा दे, दूर की गुमराही में ले जाए। तो मेरे दोस्त और भाइयों, आज विरासत का मामला, कोई मामला हम देख रहे हैं, कवानीन अल्लाह ने बनाया, कवानीन बाकायदा कुरान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। इस्लाम के कवानीन, हर मामला कोई भी उठा लीजिए, हर मामले के कवानीन, कब कोई मामला हो जाए इस तरह से मामला हमें करना है, किस मामले में कौन सी कुरान करीम की आयत है बता सकते हैं, लेकिन लोग नहीं आते हैं कुरान की तरफ। आप चाहे खुला का मामला, तलाक का हो, शादी ब्याह का हो, अच्छा यहां बता दो, शादी ब्याह की जब बात आई, मौसम चल रहा है, जब रिश्ता तय करना होता है तो रिश्ते के लिए क्या जरूरी है, क्या रस्म जरूरी है जो किया जा रहा है? मंगनी, ये हदीस का फैसला है। निकाह इस तरह से ये कुरान का फैसला, हदीस का फैसला है। आज क्या किया जाता है, खुराफात के नाम पर, बिदात के नाम पर तरह तरह के रस्में किए जा रहे हैं, जबकि ये अल्लाह और उसका रसूल का कानून है ही नहीं है। नबी का कानून, अल्लाह का कानून है मंगनी क्या होती है, रिश्ते को पक्का करना, पैगाम भेज दिया, रिश्ता पक्का गया, ये होगी मंगनी। अब मंगनी के नाम पर जो ये अंगूठी पहनाना, ये रस्म रिवाज करना, ये गाने बजाने करना, ये फंक्शन हॉल में बड़े बड़े खाने पकाना, याद रखिए दुरुस्त और जायज नहीं है। मंगनी का मतलब जो है वो ये है कि रिश्ते का पैगाम भेज दिया जाए और रिश्ता पक्का हो जाए, रिश्ता पक्का करना यही मंगनी है। इसके अलावा जो भी है ये अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन में से हरगिज हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त और भाइयों। खैर, कुरान करीम को बेशुमार आयतों से मिलेंगे। नंबर 7, ये तो अल्लाह के कवानीन की बात होगी। नंबर 8, नमाज की तरफ आने में सुस्ती करना और रियाकारी करना। आज हमारे इस माशरे के अंदर कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने के लिए कितनी सुस्ती काहली बरतते हैं, इसका जायजा हर इंसान, अगर मैं बयान कर रहा हूं तो मैं अपने लिए भी ले लूं और हम तमाम जितने सुन रहे हैं इसका जायजा ले लें, क्योंकि मुनाफिकों की अलामत है, नमाज में आने में सुस्ती करते थे। नमाज का वक्त होता था तो नमाज के वक्त को टाल कर करते थे। आइए मैं बताता हूँ कुरान करीम के आयत के जरिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक के जरिए। मेरे दोस्त और भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें हैं जो नमाज को टाल देती है। नमाज में आने में सुस्ती करना, नमाज के वक्त को टाल कर करना,
अल्लाह तआला फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व युखादिऊन, ये मुनाफिक मुनाफिक समझते हैं कि इन्होंने अल्लाह को धोखा दिया, हालांकि अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह कहता है इज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, और जब नमाज का वक्त होता है, जब नमाज के लिए आते तो सुस्ती और काहली के साथ आते, वला यज़कुरुल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह को बहुत ही थोड़ा याद करते थे। नमाज को आना है, छोड़ पकड़ करना है, नमाज में सुस्ती और काहली करना, दोनों मुनाफिक की अलामत है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना अफ़ज़ल अस्सलात लिल मुनाफिकीन सलातुल इशा व सलातुल फज्र, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक के ऊपर दो नमाजें बहुत भारी होती हैं, बहुत बोझल होती हैं। एक है इशा की नमाज और दूसरी है फजर की नमाज। और अगर इन्हें मालूम हो जाए ना कि इशा की नमाज में और फजर नमाज में कितना सवाब है, तब पता मुनाफिकों को पता चलने के बाद भी ये अपने शरीर के बल, अपने घुटनों के बल ये नमाज के लिए मस्जिद में आएंगे। और हम मुसलमान ईमान वाले, हमें तो पता है ना इशा की नमाज का सवाब कितना है, जो इशा की नमाज पढ़, फजर नमाज सवाब कितना है, जो फजर नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह के लिए काफी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद आज हम अपने बिस्तरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर ईमान कमजोर हो चुका, और ये जो मुनाफिकों की सिफात है, वो सिफात आज हमारे अंदर आ गए। उसकी वजह से आज हम नमाजों को ऐसे छोड़ रहे जैसा कि मुनाफिकीन नहीं छोड़ते थे, बल्कि मुनाफिकीन को जो है रियाकारी के लिए लोगों से डर के मस्जिद में आया करते थे। जैसे कभी बताया, जिसमें अगर वो जान लेते ना कि सवाब क्या है शाम और फजर नमाज में, तो तब भी क्या करते, अपने सुरूरों के बल, अपने घुटनों के बल मस्जिद में आ जाते नमाज पढ़ने के लिए। मेरे दोस्त और भाइयों, आइए एक और रिवायत पेश कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की नमाज बताई। मुनाफिक क्या करता है, नमाज को ताखिर करके नमाज नहीं पढ़ता है, बल्कि ठोंगे मारता है, जल्दी जल्दी पढ़ देना। आज देख रहे ना हमारे माशरे में तरावी ऐसे बन चुकी है, कैसे आधे घंटे की तरावी, 20 रकात कितने की, आधे घंटे की तरावी। बाकायदा वो जिस तरीके से टीओ में किसी या कंपनी का प्रचार होता है ना, वैसे प्रचार हो रहे हैं बाकायदा। इसका हमारे यहाँ पे 3 दिन की शबीना हो रहा है, 1 दिन का शबीना। कौन सा शबीना हो रहा है? यालमुन तालमुन, ना कुछ सूरह फातिहा समझ में आया, ना कुरान करीम, और ना नमाज समझ में आई, बल्कि सब ठोंगे मारना क्यों गए हुआ है। आइए बताता हूँ रिवायत किस तरीके से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तिलका सलातुल मुनाफिकी, मुनाफिक की नमाज क्या है? मुनाफिक की नमाज ये है, यजलिसु यरक़बु शम्स, बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है यहां तक कि सूरज डूबने के करीब हो जाए। हत्ता इज़ा कानत बैना क़रनी शैतान, यहां तक जब सूरज डूबने लगता है और सूरज शैतान के 2 सिरों के दरमियान होता है, डूबने के करीब, गरूब होने के करीब होता है, तो क्या करता है? खड़ा हो जाता है। फनक़रहा अरबअन, और 4 ठोंगे मारता है। मैं 4 ठोंगे, जिस तरीके नक़रा जो लफ्ज आया है हदीस में, ये नक़रा या नक़रे के माना होता है परिंदा जैसे चोट मारता है ना किसी फल को या किसी चीज को, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। फनक़रहा खड़ा होता है अरबअन, और 4 ठोंगे मारता है। ला यज़कुरुल्लाह फीहा इल्ला क़लीला, और इसमें अल्लाह को दिया नहीं सिवाय कुछ चीज पे, थोड़े बहुत पे अल्लाह कुछ याद नहीं करता है। नमाज, ये रिवायत जो है, ये रिवायत सही मुस्लिम की रिवायत है। मेरे दोस्त और भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें नमाज पढ़ने का तरीका बताया है, वैसे हमें नमाज पढ़ना है। और नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? नमाज इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए कि हम अल्लाह को नमाज के अंदर याद करते हैं। और आज हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि सिर्फ हमें रियाकारी करना है, एक बस अदा करना है। नमाज पढ़ रहे हैं, जल्दी सजदा हो जाए, जल्दी से रुकू हो जाए, ना रुकू सही तरीके से हो गया, ना सजदा सही तरीके से हो गया। यहां तक और मैं बात कह दूं, सुबहान रब्बियल आला, जो मैं कह रहा हूं, सुन रहे हो, इस तरीके से कहने की है ना नौबत भी नहीं पड़ रही आज के मुसलमानों को। मेरे दोस्त और भाई, अल्लाह का कलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है। क्या हम किसी से बात करेंगे, तो हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, मांगेंगे, तो इस तरीके से हम मांगेंगे। अगर कोई बड़ा आदमी है, अल्लाह के साथ अगर हम खड़े हो रहे हैं, तो किस तरीके से हमें खड़े होना, किस तरीके से हमें अल्लाह के हमद सना बयान करना है, किस तरीके से हमें कुरान करीम पढ़ना है। और कुरान करीम ये किसी का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम कैसे पढ़ना है? अच्छे अंदाज में पढ़ना है, जैसे नाज़िल किया गया वैसे पढ़ना है। नमाज ये किसी आदमी में हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। बड़े अल्लाह में देख रहा है, अल्लाह के सामने हम खड़े, अल्लाह हमारे हर हरकत को, हमारे आवाज को, हमारे सुकूनात को सबको जानने वाला है। और उसके बावजूद हम नमाज ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि हमें से कोई मतलब ही नहीं है। और मुनाफिकों की आदत है। आज देखते हैं असर की नमाज कहीं कहीं मैं देखता हूँ 5:30 पौने 6 बजे, जब सूरज गुरूब होने वाला, वहां नमाज पढ़ रहे हैं।
बैठे नमाज कितने मिनट की, इमाम भी पढ़ा रहा है तो इमाम भी ऐसा 7 मिनट का, वो तेरा इमाम भी बेहुजूर जो है ना शेर। मेरे दोस्त और भाइयों, इसलिए हम मोहिब बने, हम मुत्तकी बने, हम मुत्तबे सुन्नत बने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले बने। हम इधर से दिन लेंगे ना तो ऐसा ही होगा। माशाल्लाह हमारे मसाजिद के अंदर नमाज इत्मीनान से होती, क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु रअयतुमूनी कमा उसल्ली, नमाज उस तरीके से पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते देखते हो। तो आपने किसने कहा? सहाबा कराम देखा, सहाबा कराम चलती हुई आई, तबे ताबईन, आज हम तक हदीस के किताबों में हदीस की शक्ल में नमाज महफूज है। नमाज कहाँ कितनी पढ़ना है, कौन सी दुआ कहाँ पढ़ना है। और इसलिए तो आप हदीस में जो है ना कि मुनाफिक क्या करता, खड़ा होता, 4 ठोंके मारता, ना उसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अब देखिए मिसाल दर्ज, अगर हम नमाज में खड़े हो गए, 4 रकात पढ़ रहे हैं, 1 रकात हम रुकू में जाते हैं, रुकू में कितनी मरतबा पढ़ना है? सुभान अल्लाह का 3 मरतबा पढ़ना है, ज्यादा 7 मरतबा, उससे ज्यादा पढ़ सकते हैं। वापस खड़े हो गए कौमा में, कौमा में क्या पढ़ना है? नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये पढ़ो समीअल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। कितना अल्लाह का इसमें जिक्र हुआ, आप देखते हैं अल्लाह की बड़ी तारीफ हुई। लेकिन शैतान ने इन हम मुसलमानों के दरमियान माशरे में कई मसले तासुब बन गए, उन्हें दुआ ही पता नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये हदीस, आप समय दुआ पढ़ा करते थे, 2 समय में दुआ पढ़ा करते थे, ये दुआ से छुटकारा मिल गया। और आ गए कहां से? मेरे यानी मुनाफिकों की तरफ में आ गए। अल्लाह के कानून को छोड़ दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को भुला दिया, सुन्नत को भुला दिया, और खेलने लगे किसके? मुनाफिकों के, अहले मतलब के खैर ऐसे बुजुर्गों के, जिन बुजुर्गों को तस्वीर अगर आप सुनोगे पढ़ोगे किताबों के अंदर शर्म आ जाएगी, अपनी उंगली बातों के दरमियान चबाने लगेंगे। ऐसे ऐसे उनके वाकयात है, उनके पीछे पड़ गए आज के मुसलमान। मेरे दोस्त भाइयों सुन लो, मुनाफिक पड़ गए कुफार के पीछे, मुनाफिक शैतान की इत्तिबा करने लगे, और आज के मुसलमान उनके नक्शे कदम चलते हुए नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया, अल्लाह के दिन को भुला कर ऐसे बुजुर्गों के पीछे, ऐसे उलमा के पीछे जिनका ताल्लुक ना कुरान से ना हदीस से है, जो बेहया और जिनका बदकारी बदतर हुई है, उनके पीछे पड़ गए मेरे दोस्त और भाई। खैर वक्त कम है क्योंकि मुझे बातें बहुत सारे बताना आपके सामने। नंबर 2, मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करने से पीछे रहना। आज से मुसलमानों का ये हाल हुआ, भाई फलां जो इमाम है ना बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है, बहुत लंबी सुरतें पढ़ता है। मेरे दोस्त और भाइयों, कुरान करीम का तजवीज से सुनना। हमारे इमामों को चाहिए कि इमाम जो है ना आवाज भी उनकी तजवीज ऐसी रहे कि वो कुरान सही पढ़ना है, तो कुरान सुनने में कोई हर्ज नहीं है। कितना मिनट लग रहा है? ईशा की नमाज 12-13 मिनट, चले 14 मिनट। फजर की नमाज कितनी होती है? 15 मिनट के अंदर होती है, जहां कुरान करीम की तिलावत की जाती है। माशाल्लाह हमारे यहाँ पर ऐसे हुफ्फाज मौजूद है जो कुरान करीम सही पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, जितना ताकत उतना अच्छा, दरगाह छूट जाए तिरका छूट जाए, ताकि नमाज में इतना लंबा खड़ा ना होना पड़े। मेरे दोस्त और भाइयों, हम ट्रेन के इंतजार में, बस के इंतजार में, कोई ऑफिस के काम में, कोई सरकारी काम के लिए हम घंटे इंतजार खड़े होकर कर सकते हैं। भला बताइए अल्लाह के सामने, अल्लाह में देख रहा है, क्या हम 10-12 मिनट अल्लाह के सामने नहीं खड़े हो सकते? कुरान की तिलावत नहीं सुन सकते? और ये मुनाफिक की अलामत है। ये नमाज बाजमात से पीछे रहा करते थे मेरे दोस्त और भाइयों। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, वलक़द रअयतुना वमा यतखल्लफु अन्हा इल्ला मुनाफिक़ुन मालूम निफाक। क्या रिवायत कहते हैं कि हम हमारे नबी के सल्लल्लाहु के जमाने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, आपके अहद मुबारक के अंदर अगर कोई आदमी नमाज बाजमात से पीछे रहता तो मुनाफिक, और कौन सा मुनाफिक? ऐसा मुनाफिक जिसका निफाक सबको मालूम होता था। पता नहीं मुनाफिक आदमी है, सबको पता चलता कि अगर नमाज में पीछे है तो मालूम वाला निफाक, ऐसा नहीं जिसका इजहार नहीं हुआ है, जिसके बारे में पता चलता कि मुनाफिक है, तो मुनाफिक जमात से नमाज से पीछे रहता था। वलक़द कान रजुलु युती बिही युहाद बैन रजुलैन हत्ता यक़अ फ़ी सफ़। सही मुस्लिम की रिवायत है कि आगे फरमाते हैं, और हम में से जो आदमी मोमिन होता था वो मोमिन दिमाग बच्ची होता था, दो आदमियों के कंधों के सहारे वो मस्जिद में आता, और यहाँ तक कि उसे लाकर सब में खड़ा कर दिया जाता था। ये जमात की अहमियत के साहबा किराम नजर के मोमिन थे। और मुनाफिक जो उस दौर के, वो क्या करते थे? नमाज बाजमात से पीछे रहा करते थे। और जो मोमिन थे परेशान है, बीमार है, तकलीफ में है, चल नहीं पा रहे, तब भी 2 लोगों के कंधे के सहारे मस्जिद में आकर सब में मिलाकर खड़ा किया जाता था। ये मोमिन थे उस वक्त के। और आज हमारे दरमियान के मोमिन मुसलमानों का हाल क्या है? कहीं हमारे अपना जायजा ले लो, कहीं हमारे अंदर तो मुनाफिक में सिफात नहीं आए हैं मेरे दोस्त और भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 10, बुराई का हुक्म देना और नेकी से मना करना। मोमिन क्या करते हैं?
भलाई का हुक्म देते हैं, मारूफ कामों का हुक्म देते हैं, बुराई से लोगों को क्या करते हैं, रोकते हैं। लेकिन मुनाफिक इसके बरक्स होते हैं, लोगों को बुराई से बुलाते हैं, अरे ये चीज करो, अरे हदीस पर अमल मत करो। आज हमारे उलमा भी ऐसे हैं ना, अरे हदीस हदीस बस हमारे उलमा शुक्र सही उलमा हक माशाअल्लाह, वो कुरान की दावत दे रहे हैं, सुन्नत की दावत दे रहे हैं, वो बिदातों से बचने की दावत दे रहे हैं, वो सही अकीदा बता रहे हैं। उलमा सू जो अपना पेट पालने के लिए लोगों को कुरान से दूर बुराई की तरफ बुला रहे हैं। नाश में जान कर मैं कुछ वीडियो देखने सोशल मीडिया पे बाकायदा कुरान सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं, और यही मुनाफिक है। क्यों? जो मुनाफिक को बुराई में देते थे, अल्लाह ने कहा अल मुनाफिकूना बाज़ुहुम मिन बाज़, अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़, मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें एक दूसरे के आपस में क्या है, मुआयन है, मददगार है। अल्लाह ने कहा ये अमरना बिल मुनकर, ये मुनाफिक बुराई का हुक्म देते हैं, वो यअमुरुना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, ये जो मुनाफिक है बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं। और ऐसे आज के मुसलमान हैं, किसी मामले में अगर आपके सामने कोई बात आती है तो आपको भलाई का हुक्म देना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को बताना है, अल्लाह के अहकाम को बताना है, और लोगों की बुराई से रोकना है। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो लोग मुनाफिकों में से आते हैं मेरे दोस्त और भाइयों। ऐसी एक और सिफत है मुनाफिकों की, वो ये है मुसलमानों के दरमियान फिरका वारियत पैदा करना और इख्तिलाफ को हवा देना। नंबर 11 क्या करते हैं उलमा सू, मुसलमानों को बांट रहे हैं। अब देख रहे हैं ऐसे सब नाम ले लो, आप देखिए जो अपने आप को सुन्नत जमात कहने वाले हैं, आप देखिए हैदराबाद में बाकायदा मुसलमानों के दरमियान, अरे वो वहाबी है, अरे वो नबी को नहीं मानते हैं, अरे वो ऐसे, जहां तक उनके तकरीरों में गालियों के सिवा कुछ नहीं, नाजायज फवाइद से कुछ नहीं है, कुरान की एक आयत नहीं, हदीस की एक आयत नहीं, सिर्फ गाली गलौज मुसलमान दरमियान फिरका वारियत पैदा करना। और आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान आपस में किस तरह से बढ़ रहे हैं, मुसलमान तरह से बढ़ रहे हैं, और इसका फायदा ये उलमा शू पैदा करे, इनके दरमियान धुआं लगा के ये अपना पेट पाल रहे हैं, अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर रहे हैं मेरे दोस्त और भाइयों। नंबर 12 हकाइक को मस करना और अफवाहें फैलाना। याद रखिए मुनाफिकीन ये आज के दौर में भी और मुसलमान उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अफवाहें फैलाते थे, हकाइक को छिपाते थे, इल्जाम लगा दिया किसे कहते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इल्जाम लगा दिया गया था। क्या मामला था? हज़रत तलीम से बयान किया। मामला ये था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनी मुस्तलिक के लिए चले गए थे, गज़वे बनी मुस्तलिक जो हुआ था, वापिस आ रहे थे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके साथ थे, हौज में एक हौज हुआ करता था, आप रफ़े हाजित में गई थी, आपका हार बन गया, वहां भूल गई थी, और इधर सहाबा किराम और काफिला ये समझा कि हौज के अंदर आप रज़ियल्लाहु अन्हा बैठ चुकी हैं, गोया आपका वजन भी कम था, आप दुबली पतली थी, लोगों ने उठाया चलने लगे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब वापिस आई, देखा काफिला जा चुका है, अपना दुपट्टा अपनी चादर ओढ़ा और 10 इंच लेट गई। और उस जमाने में ऐसा होता था कि लश्कर जब आगे चलते एक आदमी लश्कर के पीछे पीछे रहता, अगर कोई किसी सामान छूट गया हो और कोई रास्ता भटक गए तो रहनुमाई कर दी। चुनांचे जब हजरत सफा बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु आए, देखा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा लेटी हुई है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सुनी उठी, और उसके बाद ऊँट को लाया, और देखिए इस पर इस्मत कैसी उठी थी, कितनी पाक दामन थी। लाने के बाद अपनी नजर को फेरा ताकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी तो वो किस तरीके से बैठ रही है, मैंने ना देखे, उन्होंने रिवायत में आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब ऊँट पे चलने लगी, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला ने अपने चेहरे को घुमा लिया था। उसके बाद मदीने में चले गए तो मुनाफिकों को अफवाह फैलाने का आप सूझा, आप मौका मिला तो उन्होंने अफवाह फैला दी, इल्जाम लगा दिया आयशा रज़ियल्लाहु तआला पर, और इतना बड़ा फितना बर्पा कर दिया कि कुछ मुसलमान भी इस चक्कर में आ गए और उनको भी फिर जो कोड़े मारे गए, और आप सल्लल्लाहु की दुनिया में आयशा रज़ियल्लाहु तआला परेशान, आप सल्लम परेशान, वालिदैन आयशा रज़ियल्लाहु तआला के परेशान, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में वही नाज़िल फरमाई, और उसके बाद इन जो मुनाफिकों के चेहरों के मुंह पर एक तमाचा पड़ गया मेरे दोस्त और भाइयों। और मुसलमान दरमियान ये किस तरह का आज अपने मिसाल बयान करता हूँ। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, तो ये जो मुनाफिक चाहते हैं एक मस्जिद बनाई थी जिसे मस्जिद ज़िरार कहा जाता है, ये चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान इस मस्जिद के जरिए दरार पैदा करें, उनके दरमियान फिरका वारियत पैदा करें, नफरत पैदा करें। चुनांचे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे में जा रहे थे, आए मुनाफिक कहा कि अल्लाह के नबी हमने मस्जिद बनाई है, और वो मस्जिद क्या बनाई है जो
मुसलमानों के लिए सर्दी से बचने के लिए, तकलीफ से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए ऐसी मस्जिद बनाई, आप वहां से नमाज अदा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गज़े में जा रहे थे, कहा कि मैं ऑफिस में इंशाल्लाह मैं वहां पर आऊंगा। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु ऑफिस में लगे तो अल्लाह ने कुरान करीम के जरिए वही नाज़िल की, कहा कि जो मस्जिद ज़िरार मिक्सर वाली मस्जिद बनाई गई है, जो मुसलमानों के दरमियान तफरका डालने, उनके दरमियान दबाव पैदा करने के लिए बनाई गई है। चुनांचे आप सल्लम ने उस मस्जिद को ढाने का, वगैरह देख के ढा जाने का हुक्म दिया। चुनांचे उस मस्जिद को ढा दिया गया। देखिए मुनाफिक कैसे थे, आज किस माशरे के अंदर भी है, यहाँ मस्जिद हमारे जगह बन गई है, ये मस्जिद में आवाज नहीं आ रही है, दूसरी मस्जिद बनाते। क्यों? हम मुसलमानों को बांटेंगे, दया पैदा करेंगे, फला मस्जिद फला मस्जिद की है, फला मस्जिद फला इमाम के नाम की है, यहाँ पर इस मस्जिद में ये आदमी नहीं आ सकता। आज हमारे जगह ये माहौल बन चुका है, और ये कौन कर रहा है? ये उलमा है। सो क्यों? क्योंकि यही चाहते हैं मुसलमानों के दरमियान क्या करे, तफरका डाले। मेरे दोस्त और भाइयों, ये जो मस्जिद है ये अल्लाह घर है, किसी भी खास है, हर कोई मस्जिद में आ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं मस्जिद मत जाओ, हम नई मस्जिद बनाएंगे, और मुसलमान के दरमियान दयालु पैदा करते हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, मस्जिदों को आबाद करना है पहले, और ठीक है मस्जिद छोटी पर लोग ज्यादा है तो ठीक है दूसरे बनाइए, लेकिन बिला वजह मुसलमानों के दरमियान दयालु पैदा करने के लिए, फिरका वारियत पैदा करने के लिए अलग अलग मस्जिदें बनाना, ये तो आम बात हो चुकी है। मेरे दोस्त और भाइयों, ये जिस तरह से मुनाफिकों ने किया था, ऐसे ही अल्लाह तआला की राह में आने वाली आजमाइशों को बर्दाश्त ना करना, ये भी मुनाफिकों की आदत है। मेरे दोस्त और भाइयों, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो अल्लाह तआला हमें तरह तरह से आजमाएगा, क्योंकि ईमान वाले को अल्लाह आजमाने वाला है। खुद अल्लाह ने कुरान करीम में अहादीस में कहा, जब अंबिया किराम को अल्लाह तआला ने आजमाया तो हमको क्यों नहीं आजमाएगा? मेरे दोस्त और भाई, आइए देखते हैं मुनाफिक क्या कर। देखिए अल्लाह कहता है, ओ मिनन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते किनारे पर हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं किनारे पर। मतलब क्या है? फिर आशा बहु खैर नबी, अगर उन्हें कोई खैर पहुंचता है तो मुतमईन हो जाते हैं, वही आशा वजी, और अगर उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो उल्टे पैर फिर जाते हैं, चले जाते हैं इसकी तरफ उसकी तरफ। और हम मुसलमानों का भी ये हाल है कि मुसीबत पहुंच गई, चले बाबा के पास, चले इसके पास, और कोई अच्छी बात पहुंची, अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन हो गए। लेकिन मुसीबत पहुंची, अल्लाह हमारे साथ ऐसा कर रहा है, अल्लाह हमारे साथ ये कर रहा है, हम अब इसके पास चले जाएंगे। याद रखो मुनाफिकों की अलामत है। अल्लाह क्या कहा? कुछ लोग इबादत करते अल्लाह के किनारे पर, अच्छी चीज पहुंची तो मुतमईन हो गए, तो मुसीबत पहुंची तो फिर गए अपने कदमों की तरफ, अपने एरिया पर फिर गए, ईमान से फिर गए। हजरत दुनिया वाला आखिर, अल्लाह कहता इन्होंने अपनी दुनिया के लिए खो दिया, आखिरत में खो दिया। अल्लाह ये कह रहा है मेरे दोस्त और भाइयों। इस तरह ऐसे नंबर 14, मुसलमानों पर मुसीबत आए तो खुश होते हैं। आज देख रहे हैं सियासी तौर पर जो लोग हैं, लजन आता है तो मुसलमानों का बहुत नाम ले रहे हैं। उनका मकसद क्या है? अरे मुसलमान मरे कटे, उनका मुसीबत आए कुछ भी हो जाए, बस हम अपना उल्लू सिला करेंगे, हम अपना काम निकलवा लेंगे। आज सियासी पार्टियां ये कर रहे हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, इन मुनाफिकों से बचो, मैं बार बार कह रहा हूं, इन मुनाफिकों से बचो जिन्हें इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, मुसलमानों की किरदार से कोई मतलब नहीं है, बस अपना फायदा उठाना चाहते हैं। जहां उन्हें मुसलमानों से फायदा पहुंचता है वो वहां फायदा उठाएंगे, और दूसरी मादर को आंच पहुंचेगी, कोई कुछ हमारे साथ देने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं मुसलमानों को जब जब आंच पहुंची अपने हाथ खड़े कर लिए। ऐसे ही नबी के जमाने में जब मुसलमानों को मुसीबत पहुंचते, अल्लाह ने कहा इन तुसीबत हज़रतहुम, जब तुम पर कोई मुसीबत पहुंचती है मुनाफिक खुश होते हैं, और तुम्हारी तरफ जब अल्लाह की मदद आती है तो ये मुनाफिक क्या होते हैं? तुम्हारे गमज़दा हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त और भाइयों, वफादारी को झुटलाना, वफादारी को तब्दील करना, नंबर ऐसे चर्ब लिसानी, मीठी मीठी बात के जरिए मुसलमानों को खबरें निकालना। मेरे दोस्त और भाई, आखिर में थोड़ा सा मैं मुनाफिकों के अंजाम का जिक्र कर दूं आपके सामने। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना फी दर्क अस्फल मिन नार, बेशक मुनाफिकीन जो है ना, इनका जो अंजाम होगा ये जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, बहुत ही बेकार लोग हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में शुरू के 2 आयतों में, अल्लाह दो रुकू के अंदर शुरू की 4 या 5 आयतों में अल्लाह ने मोमिनों का जिक्र किया, सिर्फ 2 आयतों में अल्लाह ने काफिरों का जिक्र किया। लेकिन जब बात मुनाफिकीन की आई, दूसरे गिरोह की मुनाफिकीन की आई, तो अल्लाह ने पूरे रुकू के अंदर का जिक्र किया, रुकू नंबर 1 से रुकू नंबर 2 तक, लगभग 13 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि ये जो मुनाफिक जो गिरोह है इतना खतरनाक है कि इनसे बचना बहुत मुश्किल है, और अल्लाह ने तो लंबा जिक्र किया है।
آپ उठाओगे ना सूरह बकरा की जो शिर्क दूर किया अल्लाह ने इंसानों की तकसीम बयान की। पहले मोमिन 5 आयतें बयान किया, फिर काफिर 2 आयतें बयान किया, फिर उसका नंबर 3 मुनाफिकों ने फिर किया, तो पूरा एक रुकू में 13 आयतों के अंदर उनकी जिक्र बताया ये मुनाफिक से। यहाँ नहीं बल्कि कुरान करीम की बहुत सारी सूरतों में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ने मुनाफिकों को जिक्र किया। और याद रखिए अल्लाह के रसूल ने ये वाज़ेह कर दिया कि मुनाफिकों से बचो, मुनाफिकों से बचो। और अल्लाह के नबी ने कहा और बहुत मुमकिन नफी ही कान मुनाफिक खालिशन, कि जिस बंदे के अंदर ये 4 सिफात होंगे वो पक्का मुनाफिक होगा। और उनमें से एक कोई निशानी होगी तो वो मुनाफिक की सिफत में उसका शुमार होगा। वो कौन कौन से आपने फरमाया, वो मुनाफाना, जब इसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो उसे क्या करता है, खयानत करता है। और अमानत सिर्फ चीजों में नहीं होती, सिर्फ पैसा या रकम या कोई चीज नहीं होती है, बल्कि किसी का राज अमानत है। किसी के राज को फाश करना ये भी मुनाफिक की निशानी है, ये भी खयानत करना हो गया। आज को कोई आपको अपना राज बताता है, अब उसके राज को बता रहे फला आदमी का ये है, वो अपनी जिंदगी में पहले पुराने में ऐसा था या उसको ऐसा हुआ। मेरे दोस्त और भाइयों, राज को फाश करना ये भी खयानत है। नंबर 2, वहीदा हदसा कज़बा, जब बात करता है झूठ बोलता है। और मुसलमानों में चीज आ गई, औरतों के अंदर हर बात को झूठ हो। याद रखो मेरे दोस्त और भाइयों, सच कहो, सच्चे से अल्लाह ताला है, झूठों पर अल्लाह की लानत होने वाली है। नंबर 3, जब आहद करता है तो उस आहद को तोड़ता है। अल्लाह से बंदों से है, अल्लाह के बंदों से है। वह इज़ा खास फजरा, और जब कोई बहस होती है, झगड़ा होता है तो गाली गलौज करता है। क्यों? गाली गलौज करना मुनाफिकों की अलामत है। झगड़ा होता कहां नहीं होता, लेकिन झगड़े के अंदर अच्छे अंदाज में हो, सही तरीके से बहस हो तो अच्छे अंदाज में होनी चाहिए, ना कि गाली गलौज। और हमारे उलमा से मुनाजरा होता है तो गाली करेंगे, अरे ये बददीन है, अरे ऐसा नाजायज है। ये अंग्रेजों को हम लोग कहते हैं, अंग्रेजों को जो तालीम देने वाले कहते हैं अंग्रेजी नाजायज औलाद है। कितनी गंभीर गाली मेरे दोस्त और भाइयों, क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मुनाफिक की सिर्फ इनके अंदर है। और हम मोमिन सहाबा किराम वाले हैं, हमारे अंदर सिफत सहाबा किराम वाली है, तो हम कुरान और सुन्नत के जरिए अपने दावों को साबित करते हैं। हम अमल करते हैं कुरान पर, हम अमल करते हैं सुन्नत पर। हमारा हर अमल, हमारे हर बात, हमारी बात होती नबी के फरमान के मुताबिक, हमारा अमल होता है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के मुताबिक। मेरे दोस्त और भाइयों, कहने का मतलब ये है मुनाफिकों से बचे रहो। आज की दौर का जो मुनाफिक है, सियासी तौर पर है या किसी भी तौर पर है, अब हम देख रहे हैं इन मुनाफिकों से बचो और खास करके अपने आप को बचाओ। कहीं मेरे अंदर मुनाफिक की सिफत नहीं आई। मैंने आज जिक्र किया कि मुनाफिक की जो सिफत है वो नमाजों में सुस्ती तारी करते हैं, खास फजर और इशा और नमाज बाद जमात से पीछे रहते हैं। कहीं हमारे अंदर चीज तो नहीं आई। आज देखिए जुमा में माशाल्लाह मस्जिद भर जाती है, लेकिन जुमा के अलावा मस्जिद में कितने लोग रहते हैं, कितने अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है। मेरे दोस्त और भाइयों, हम दुनिया में आए हैं तो आखिरत की तैयारी करने के लिए, ना कि दुनिया में रहने के लिए आए हैं। जब तक हम दुनिया में हैं मेरे दोस्त और भाइयों, हम सच्चे पक्के मोमिन बने। हमारे लिए जरूरी है कि हम निफाक और मुनाफिक से बचे, निफाक से बचे, उनकी सिफात से बचे और हम मोमिन वाले हमारे अंदर सिफात पैदा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक और सलाम की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मुहिब बना, मुत्तकी बना, मोमिन बना, मुनाफिक और निफाक से बचा, मुनाफिकों की सिफात से बचा, मुनाफिकों की अलामत से बचा, उनके आदात व अतवार से बचा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को एक बना, कुरान सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जहां कहीं मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा। खास करके रब्बुल आलमीन फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन जहां कहीं मुसलमान बीमार है उनकी बीमारी दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जहां कहीं मुसलमान लड़के लड़कियां निकाह से खाली बैठे हुए हैं, रब्बुल आलमीन उनके लिए नेक और जोड़ा अता फरमा। और जिन लोगों की शादियां हो चुके हैं रब्बुल आलमीन के दरमियान सच्ची मोहब्बत मोहब्बत अता फरमा, उनके दरमियान सही मोहब्बत अता फरमा, उनके दरमियान उल्फत अता फरमा। रब्बुल आलमीन तू जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम को जिंदा रख और हमारा खात्मा फरमा, ईमान बिल खैर पे फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन। वमा नज़ल बिल मुबीन व नफ़अना इय्याकुम बिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीमुल मलिकुल रब्बुल हलीम।